سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر شدید غربت کا عالم تھا اور مسلمان دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے. خندق کھودی جا رہی تھی، چوڑی خندق کھودیں گے، آگ جلائیں گے تاکہ کفار حملہ آور نہ ہو سکے. غربت کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں نے نا آپ کے چہرے پہ نکاہت دیکھی ہے ظاہری، تو حضور 8-10 بندوں کی روٹی ہے تشریف لے آئیں. تو حضور نے فرمایا سارے ہی چلو بھائی، سارے ہی چلو. کہتے میں گھر دوڑا، بیوی سے جا کے کہا حضور تو سب کو لے کے آ رہے ہیں. تو اہلیہ کہنے لگی کہا نہیں تھا کہ 8-10 بندوں کا کھانا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے کہا تھا، پر حضور نے اعلان کر دیا سارے چلو. تو فرمانے لگی بس ٹھیک ہے، اگر حضور نے اعلان کیا ہے تو اللہ رسول ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، پھر آپ آنے دیں. آپ کیفیت دیکھیے، خندق کھودی جا رہی ہے، غربت کا یہ عالم ہے، بھوک کا یہ عالم ہے. بظاہر اسلام پر جو غربت ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایک چٹان آ گئی، ٹوٹتی نہیں صحابہ سے. میں علماء سے تو میں نے شروع میں کہہ دیا میرا خطاب ہی نہیں، طالب علموں سے، دینی طالب علموں سے. یاد رکھنا مسجد میں خطبہ دینا بھی بڑی شان کی بات ہے، لیکن مسجد کمیٹی والوں کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ کی ہوتی ہے. رب کا گھر سمجھ کے کبھی جھاڑو دے نا تو بخاری میں وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ جو بوڑھی جھاڑو دیتی تھی اور وصال کر گئی، صحابہ نے بتایا نہیں تو اللہ کے رسول نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھا تھا. اٹھ فریدا ستے آتے جھاڑو دے مسیت، تو ستے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. لیکن اگر نبی کریم سارے کام دستے مبارک سے کر لیتے ہیں، یہ بھی سنت حضور نے ہمارے لیے چھوڑی ہے. چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو فرمایا میرے ہاتھ میں لاؤ نا تھوڑا، مجھے دو نا کدال، لاؤ میں توڑتا ہوں. حضور اترے. اب جوان میری بات پہ غور کریں گے. حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، جنگ دفاعی لڑی جا رہی ہے. پر حضور اترے چٹان توڑنے کو، اور جب پہلی ضرب لگائی نا، جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، پہلی ضرب لگائی. ابھی مدینہ بھی فتح نہیں ہوا، مکہ بھی فتح نہیں ہوا، ابھی قریب قریب کے علاقے بھی فتح نہیں ہوئے، لیکن ایک چٹان پہ ضرب لگائی حضور نے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ٹوٹی تو نعرہ پتہ کیا حضور نے لگایا، فتح ابھی مکہ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ ولولہ دینے کا انداز میرے نبی کریم کا. ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی روم بھی فتح ہو گیا. تیسری ضرب لگائی تو فرمایا لو دیکھ لو بھی اللہ تعالیٰ نے یمن بھی دے دیا، ایران بھی دے دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ اعلان وہاں ہوا تھا. کسی صحابی کو میں نے ایک دوسرے کے کان میں یہ کہتے نہیں دیکھا کہ ابھی تو مکہ بھی نہیں فتح ہوا. کسی نے ایک دوسرے سے پوچھا نہیں کہ یہ پیشگوئی کب پوری ہوگی. حضور نے وصال ظاہری فرمایا. جناب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، خلافت کی تکمیل پر حضرت عمر آئے، اور جب روم کی، ایران کی، یمن کی کنجیاں آ رہی تھیں تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ چابیاں آ گئی، ملک فتح ہو گیا، اور مجھے وہ خندق کے اندر ضربیں لگاتے مدینے والے محبوب کی باتیں یاد آ رہی. بھائی آپ آگے تو بڑھیں، آگے تو بڑھیں. یہ زندگی کے اندر ٹھہر جانا، مایوس رہنا، میں کر کچھ نہیں سکتا، ہو کچھ نہیں سکتا. حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تقریر کرتے کرتے کسی خطیب نے کہہ دیا مسلمان بڑے بد نصیب ہیں، آج پستی میں چلے گئے. تو حضرت فرمانے لگے مولانا ٹھہر جاؤ، جو مسلمان ہوتا ہے وہی تو خوش نصیب ہوتا ہے. جس کو حضور کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہے وہ بد نصیب ہے. وہ تو کنتم خیر امت میں داخل ہے. اور آپ نے یہ کیا کہہ دیا، ان کو خوش کریں، خوشخبری دیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے کہا تھا لوگوں کو خوشخبریاں دینا، مایوس نہ کرنا. تھوڑا سا اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں آگے بڑھنے کا. ایک تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، پھر بات کو سمیٹتا ہوں. خودداری نہ حسن ہے زندگی کا، خودداری شخصیت کا وقار ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اپنی امت کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا امت کا پسند نہیں کیا. ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا اپنے دکھ دنیا داروں سے نہ کہنا،
ना कहना नवाबों सेठों से, अपने दुख दुनियादारों से ना कहना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में बयान करना, जल्दी या देर से अल्लाह तुम्हें सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा। खुददारी थोड़ी सी ना जिंदगी में पैदा करें। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो हम समझते हैं ना कि शायद वो फलां सेठ साहब नाराज हो गए तो खुदा जाने क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। जितने जितने लोग सेठ होते जाते हैं, ओहदों पे जाते हैं, उतने उतने तो बेचारे कांपने लगते हैं। ये जितनी कुर्सियों पे हुकूमतें खड़ी होती हैं, एक ना एक पाया हिल ही रहा होता है, ये बेचारे परेशान ही रहते हैं। खुददारी जवानों के लिए बड़ी जरूरी है। हमारे बच्चे, आने वाली नस्ल सहारे ढूंढने लगी है। कहते हैं वो मेरी लंदन वाली कभी फुफ्फो मेहरबान हो गई तो काम बन गया, अमेरिका वाला मामू अगर कभी रिश्तेदारी कर ले तो फिर ख्वाब देखते हैं बच्चे के सवेरे उठूं तो पैसों का तोड़ा मेरे चारपाई के नीचे पड़ा हुआ हो। इस तरह नहीं होता। आप खुददारी के साथ जीना सीखें, खुददारी के साथ। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, एक शख्स ने आके कशकोले तलब दराज किया, और कहां दराज किया, जहां से कभी कोई खाली गया ही नहीं। सरवरे कायनात की बारगाह में हर एक को मिलता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। कशकोल आगे किया, हुजूर कुछ दीजिए। तवज्जो है मेरी बात पर? हुजूर ने फरमाया क्यों मांगते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं। अर्ज की हुजूर एक प्याला, एक कंबल। है कोई इतना गरीब इस महफिल में बैठा हुआ? वैसे किसी से पूछ लें हाल क्या है तो बड़े गरीब निकल आएंगे। भाई एक प्याला और एक कंबल, इतना ज्यादा गरीब भी कोई होगा? उसने कहा हुजूर सिर्फ एक प्याला और एक कंबल। तो करीम ने फरमाया लेके आना। वो लेके आए तो हुजूर ने उसकी भी बोली लगवा दी। कौन खरीदेगा? है कोई खरीदने वाला? एक सहाबी ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2 दिनार। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दी। फरमाया जा 1 दिनार का घर खाना ले जा और 1 दिनार का ना कुलाड़ा खरीद के ला। वो कुलाड़ा, पेशा जवानों कोई भी बुरा नहीं, कोई पेशा बुरा। एक बुरा है किसी के आगे हाथ फैलाना बस, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्हाड़ा लेके आ। सहाबी कुल्हाड़ा लाए तो सहाबा कहते हैं बड़े नसीब वाला था ये शख्स। वो कुल्हाड़ा लाए तो उसमें दस्ता हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जाके ना लकड़ियां काट जंगल से, उन्हें काट के बेच, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी, पी भी और पिला भी। जा 15 दिन नजर ना आना। कहते 15 दिन के बाद आए तो हुजूर ने फरमाया अब क्या हाल है? अर्ज की हुजूर पहले एक प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। पहले एक कंबल था, अब सबके लिए बिस्तर तैयार हो गया। आपके अंदर जब खुददारी आती है, जब इज्जत नफ्स आती है, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। कुरान मजीद ने असहाबे सुफा की तारीफ की कि वो लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, वो देखते ही नहीं। वो नहीं ये काम करते कि कौन आया है तो क्या लेके आया है, और कौन आया है तो क्या दे के जाए। ये मिजाज नहीं। हातिम ताई से किसी ने पूछा था कि अपने से सखी बंदा भी कभी देखा है? उसने कहा देखा है। कहा कब? कहने लगे मैंने एक दफा सारे शहर की दावत पकाई थी। मेरा खुद ही इरादा बना कि मैं जरा देखूं कोई रह तो नहीं गया। चेहरे पे निकाब डाल के तो मैं निकला। सारे शहर में देखा कि हर शख्स आ गया है, पर एक बूढ़ा जंगल में लकड़ियां काट रहा है। मैंने उस शख्स से कहा कि मियां आपको दावत में नहीं बुलाया हातिम ताई ने? तो कहते हैं बाबे ने बड़ी अनोखी बात की। कहने लगा पुत्र बुलाया था, पर मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया है। हाथों की कमाई का, मैं आपको यकीन से अर्ज करूं, दावतों में लोग, शादियों में लोग इतने मजे से रोटी नहीं खाते। मैंने एक दफा अपने अब्बा जी से पूछा आपको पसंद क्या है? कहने लगे पुत्र जी तो भूख लगी होवे तो हर शाही पसंद है, फिर तो चटनी भी बड़ी पसंद है, ते ना लगी होवे तो फिर नखरा ही है, फिर ये है कि जो भी पका है उसमें नुक्स ही है। वो कहने लगा जी मुझे अपने हाथ की कमाई का ना चस्का लग गया है, अब मुझे दावतों में ज्यादा लुत्फ नहीं आता, तो मैं इसलिए नहीं गया। हातिम ताई कहते हैं मैं वापस लौटने लगा तो उसने आवाज दी। उसने कहा पुत्र आप दावत पे जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा ये 5 दिनार मेरे भी ले जा। हातिम ताई को तो जरूरत नहीं, तो लंगर पकाने वाले को दे देना, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने खाना खाना है, चलो मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। हातिम ताई कहते हैं मैं घोड़े से नीचे उतरा, बाबा जी का हाथ थाम के मैंने कहा बाबा
मैं तो मालदार हो के सखी हूं ना, तू गरीब हो के बड़ा सखी है। वो क्या कहते हैं दरवेश, मालां वाले सखी नहीं हुंदे ते सखियां कोल माल नहीं हुंदा। इत्थे उथे दोवें जहानी सखी कंगाल नहीं होता। अपनी जिंदगी में ना खुददारी। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तेल लेने चले गए दुकान पे सरसों का। फिर वही बात आ गई, कुछ काम अपने हाथ से भी करने चाहिए। शागिर्द मुरीद बड़े थे, खुद चले गए तेल लेने। उससे कहा मियां ये सरसों के तेल की बोतल भर दो। उसने भर दी। फरमाने लगे कितने पैसे? कहने लगा हुजूर वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम में आप 3 आने दे दें, आपको 2 आने रियायत करते। फाजिल बरेलवी ने पूरे 5 दिए। फरमाया तू सारे रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करूं मदह अहले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। देखो अगर खुददारी आपकी तबीयत में आएगी तो आप अपने आप को ना थोड़ा बावकार महसूस करेंगे। आपको यूं लगेगा कि आप इबादत कर रहे हैं, तिजारत नहीं कर रहे हैं। आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी जो है इस पर किसी और का नहीं, आपका अपना कब्जा है। आप महसूस करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो डंके की चोट पे कह रहे हैं। आपको यूं लगेगा कि आपके पास जो कुछ है वो अपना है, आप कहती नहीं है किसी के। शायर, बस बात खत्म कर रहा हूं, शायर हजरत से माजरत के साथ बाद शोरा ऐसे होते हैं कि वो काबिल रहम होते हैं, तबीयत ऐसी होती है। और रात को चादर ओढ़ी है तो 3-4 दिन गुजर गए, एक अलग दुनिया है ना ये भी। तो एक शायर बेचारा बड़ी खस्ता हाली में कहीं चौक में था, मक्खियां भिनक रही थी, तो एक मालदार आदमी गुजरा, उसने फकीर समझ के चंद रुपए फेंक दिए। तो शायर ने कहा कि ये क्या? उसने कहा गरीब आदमी हो, तो खुददार आदमी था। उसने कहा अपने पैसे ले जा। उसने कहा तुम्हें जरूरत थी तो दिए। तो उसने जो शेर कहा वो मुझे बड़ा पसंद है। उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी ना तो मैं अल्लाह रसूल से मांगूंगा, तुझसे नहीं मांगूंगा। उसने कहा रख ले, तुझे जरूरत है। उसने कहा ये आरज़ू करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए। बहलोल दाना बैठे थे, हारून रशीद गुजर रहा था। कहने लगा बाबा कोई हुक्म हो तो बताइए। ये आरज़ू करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ू करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। वो बहलोल दनाब तशरीफ फरमाते तो हारून रशीद गुजर रहा था, बड़ा लाओ लश्कर, नारिश बड़े लग रहे हैं। तो हजरत उसको देख के मुस्कुराने लगे। उसने कहा बाबा हंसता क्यों है? फरमाने लगे हंसता इसलिए हूं कि ये जो आज तेरे नारे लगा रहे हैं तुझसे पहले भी कईयों के लगाया करते थे, वो भी इसी तरह ही राजी थे जिस तरह तू आज राजी है ना, इसी तरह। वो नीचे उतर आया, कहने लगा हुजूर मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कोई हुक्म हुआ तो बताइएगा। आप फिर हंसने लगे। उसने कहा हंसते क्यों हो? फरमाने लगे तुझे किसने बादशाह बनाया, तू तो बड़ा ही बेवकूफ है। एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। तो हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था। और वो प्रोपेगेंडा बाज़-औक़ात इतना ज्यादा किसी के बारे में होता है कि मैं बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दाम कराने के लिए, तो कहते हैं पीर साहब बड़ा जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूं कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं जिद्दी हूं। तो आप ज़हन बना रहे हैं इसका कि तो इस तरह का है। ज़हन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा उठो कोई मेरे मुकाबले में, तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात।
मैं आपको समझा के लाया हूं पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त है, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तू जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब पंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। वो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हजरत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूं कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार ज़रब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी, इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा। ये क्यों करते थे लोग, अरब के लोग उस वक्त ये काम करते थे कि हमने घोड़ा ही मार डाला है ताकि हम भाग ना सके। कहते ना कश्तियां जला दी हैं कि अब वापस जाने का रास्ता ही बंद हो जाए, घोड़े के पैर काट डाले के भागना नहीं। और बड़ी जोर से उसने ज़रब लगाई हजरत अली पर। हजरत अली ने जब रोकी तो वो ढाल टूट गई हजरत मौला अली, और आपके इमामे को उसकी तलवार भी लगी। आपने फरमाया दिखा लिया तूने जोर, अब मेरी बारी है। हजरत मौला अली शेर खुदा का कद बज़ाहिर छोटा था, सहाबा कहते हैं हम दूर से देख रहे थे, अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा जमीन से वो उठे, थोड़ा सा उठे और फिर दोबारा नहीं उन्हें तलवार चलानी पड़ी, एक ही ज़रब लगाई और उसके 2 टुकड़े करके उसे जमीन पे फेंक दिया। तो अजीज दोस्त आप याद रखेंगे इस बात को कि अपनी जिंदगी के अंदर मरूब होना छोड़ दें। रोब में तातारियों ने मुसलमानों को मरूब कर लिया था, रोब डाल लिया था कि हम बहुत बड़े लोग हैं। यही आज हमारे साथ बहुत सारे लोग करते हैं, दिलों में रोब आ जाता है, अमीर रिश्तेदार का, फलाने का, फिर वो जो मर्जी करता है। हजरत मौला अली शेर खुदा को अल्लाह ने हिकमत दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम अबू नईम ने लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हिकमत के 10 हिस्से किए जाए ना, दानाई के 10 हिस्से किए जाएं, तो उसमें से 9 हिस्से अल्लाह ताला ने हजरत अली को अता फरमाए और एक हिस्सा बाकी लोगों को मिला है। दाना थे, मामला फहम थे। कुछ बंदे बड़े मुनाफिक किस्म के थे, तो हजरत अली आसान हो गई तो वो हजरत मौला अली शेर खुदा के पास आ गए, अजान हो गई, हजरत अली ने जमात करानी। उनका ख्याल था कि आज हमने जमात लेट करानी है किसी तरीके से। हम चूंकि ज्यादा बातें, मैं दोस्तों से कहता हूँ बहुत ज्यादा खबरें ना देखा करो, बहुत ज्यादा भी चीजें ना सुना करो। आप तो मेरे भाई मोबाइल के अंदर चले जाएंगे, बाहर की दुनिया तो और है। तो थोड़ा बाहर भी निकले तस्वीरों से, थोड़ा बाहर भी आए, दीगर मामलात भी देखें। हमें बड़े बड़े अच्छे लोग जिंदगी में मिल जाएंगे, लेकिन हम उनके करीब नहीं जाते, हम देखते नहीं कि असल बात क्या है, सुनी सुनाई चीज़ों पर ज़्यादा गुमान करते हैं। अब हज़रत अली चूँकि बड़े दाना थे, मुसल्ले पे बढ़ रहे हैं, जमात खड़ी करनी है, अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, बंदों का ख्याल था नमाज लेट करानी है। ने फटाफट हज़रत अली से कहा कि हुजूर ज़रा वो जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं, और ज़रा वो भी बताइएगा जो बच्चे देते हैं। ये जरा अब कितने को बंदा जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे, हो बकरी जो है वो बच्चा देती है,
مرغی انڈا دیتی ہے اور گائیں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے. بندہ تو یہ گننے لگ جائے. تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں, فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا. موٹی سی بات بتاتا ہوں, جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز کی نیت مان لی تم گننا گھر جا کے. موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے آیا تھا, میں خود بڑا الجھ گیا. یہ کیا ماجرا ہے, کیا معمہ ہے کہ دو فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی. کہنے لگے گھر جا کے گننا, یہاں ٹائم نہیں, نماز کا وقت ہے, بس جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے باہر ہیں وہ جا کے حساب کرنا. آپ ڈھونڈ لیں, تلاش کر لیں, چلے جائیں ماہرین کے پاس, پر شیر خدا شیر ہی ہے. حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے. ان کی دانائی, ان کا تدبر, ان کی حکمت, ان کا فہم, ان کی فراست, ان کا کمال. ایک شخص بڑی دور سے آیا, اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی, 2 باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے, 2 باتیں. تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا, لمبی امیدیں نہ لگانا, موت کا پتہ نہیں کب آ جائے. منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے, اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا, یہ بھی کر لوں گا, یہ بھی کر لوں گا. ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر, پلان پہ پلان, پلان پہ پلان. تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں. اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہیں کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے. حضرت علی فرمانے لگے 2 کام, ایک تو لمبی امید نہ باندھنا اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا. دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں, وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ کام نہ کرنا. تو دانائی اللہ تعالیٰ نے